हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Digimentor Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimentor.com पर विजिट करें। तो एज आई सेड, आपके पास इन एज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपके पास दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। यू हैव लैंग्वेजेस, you have a high level language, you have a assembly code and you have a machine code। तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल C इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, C++ इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, Java इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, .NET is a high level language। So earlier, nowadays we call it as a .NET framework, but earlier we used to have C# .NET which is a language, and we used to have VB.NET, तो वो भी एक लैंग्वेज थी, करेक्ट। तो ये जो सभी हैं, all of these things are representing your high level language। So basically when you write a program, you write your program in high level language। जो भी आजकल हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, we do not really use machine language nowadays, because machine language के अंदर assembly code को लिखना that is very very difficult, and there is no benefit of using an assembly code, there is no benefit of using machine code nowadays, ठीक है। अब यहाँ पर if you remember it, अगर आपको याद हो, so in your high level language, for example C is the high level language, then you can write up code something like this, that you have a main function, और आप main function के अंदर you can create different kind of variables, you have integer a, integer b, right, integer c, this kind of variables you can have, you can perform some statements like a is equal to b plus c and so on। आप कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, okay। but when you look at this assembly code, तो जो आपका assembly code है, that will be something like this, add r0, r1, where r0 and r1 are registers। उसी तरीके से you have subtract r0, r1, where r0 and r1 are registers। and when you see this machine code, तो जो machine code है, it's something like this, right। so in binary you write your machine code, ठीक है, fine। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। देर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लाइक यू हैव प्रोसीजर लैंग्वेज, you have object oriented programming language, you have some functional languages and you have some declarative languages। जैसे procedural language में Fortran is a procedural language, COBOL is a procedural language, BASIC was a procedural language। ये जो languages थे, these are used in 1970s। so in 1970s and 1980s this Fortran, COBOL and BASIC, they used to be very very famous। उसके बाद we have a C language। तो 1970s and 1980s के बाद जो है C लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमस हुई, एंड यू हैव C एंड ADA, दीज आर योर प्रोसीजर लैंग्वेज, करेक्ट। देन फ्रॉम दीज प्रोसीजर लैंग्वेजेस वी डिज़ाइंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर आपकी एक लैंग्वेज है स्मॉल टॉक, यू हैव C++, यू हैव विजुअल बेसिक, यू हैव C#, .NET, यू हैव जावा, and then you have functional programming languages like you have Lisp, you have Scheme, and then you have some declarative programming languages like you have Prolog। अब जनरली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास आ सकती है, सो देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नंबर वन, द लैंग्वेजेस दैट आर डिज़ाइंड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जिसको सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जैसे आई मीन दे आर डिज़ाइन टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर, और दे आर डिज़ाइन टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली, ठीक है। जैसे अगर आपको पता हो, वी यूज़ ऑब्जेक्टिव सी, करेक्ट। ऑब्जेक्टिव सी इज़ यूज्ड to design iOS application। so objective C है, hardly we use it to design any other different kind of application। हम लोग सिर्फ iOS application के लिए ही mostly objective C का use करते हैं। even if you want to design software for Macintosh operating system, again we can use objective C, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारे पास कुछ languages होती हैं that are called as your general purpose programming language। सो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब है कि हम इन सभी लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ाइन एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आई मीन इन जनरल, जैसे आप यू आर यूजिंग दीज लैंग्वेजेस टू डिज़ाइन अ वेबसाइट, यू आर यूजिंग दीज लैंग्वेजेस टू डिज़ाइन सम काइंड ऑफ लॉजिक, कुछ अपनी तरह का सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं, तो वो हम लोग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, these are the languages that are very very famous that we जो अभी आपकी कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल you have Infosys and your Tech Mahindra, most of these companies
they hire people who are working on general purpose programming languages, because जो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं that is for general purpose. ओके, अब जैसे यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस के एग्जांपल है. आउट ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस, COBOL was a business used for business application. Fortran was used for engineering and scientific applications only. Fortran जो है वो engineering और scientific applications के लिए ही बनाई गई थी. And using this Fortran, we have also designed MATLAB. अब जो लोग यहाँ पर मास्टर्स कर चुके हैं इन बीटेक स्टूडेंट्स, बीटेक के लिए आई डोंट थिंक सो कि उनको लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बट जो लोग यहाँ पर मास्टर्स कर चुके हैं, हु हैव डन सम रिसर्च एंड PhDs, देन दे नो MATLAB, तो उनके लिए MATLAB समझना बहुत ज़रूरी है. I think they work on MATLAB. Okay. Then you have Pascal. So Pascal was used as a general purpose, right? It is a general use language. But we have C and C++ that became the very first language जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई. और ये जो C and C++ है, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुआ करती थी. ओके, उसके बाद हमारे पास प्रोलॉग है. प्रोलॉग मीन्स प्रोग्रामिंग लॉजिक, और जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है दैट इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड इवन जावा इज़ ऑल्सो ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, तो जावा भी जो आपकी वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे यहाँ पर C++ इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, C#, जावा, C लैंग्वेज, ये सभी आपकी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. ओके, सो दैट इज़ वाई आप चेकआउट करेंगे देयर आर वेरी फ्यू पीपल, देयर आर वेरी फ्यू एप्लीकेशंस वेयर पीपल आर वर्किंग ऑन पास्कल. लेकिन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए ही काम करते हैं. वेरी फ्यू प्लेसेस वेयर जो लोग हैं तो पीपल आर वर्किंग ऑन MATLAB, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर वर्किंग ऑन C++, C# एंड जावा. ये सभी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ज़्यादातर लोग यहीं पर काम करते हैं. ओके ओके फाइन. नाउ व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम, जैसे आपने एक प्रोग्राम को लिखा, दिस इज़ अ प्रोग्राम, a C language program, which is a high level language, right? So you are writing integer a is equal to 5, b is equal to 6, and c is equal to 7. I can say a is equal to b plus c. So this is the kind of program I can write. अब ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है, this program is in high level language. किस में है ये प्रोग्राम? हमारा high level language के अंदर. Okay? So we call this as a source code. अब इस प्रोग्राम को हम देते हैं प्री प्रोसेसर के पास. व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो सबसे पहला स्टेज होता है आपके पास प्री प्रोसेसर. अब ये जो प्री प्रोसेसर का स्टेज का काम क्या है? सो प्री प्रोसेसर इज गोइंग टू रिमूव ऑल द हैश डिफाइंड स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम. तो जहाँ पर भी हैश डिफाइंड स्टेटमेंट है ये उसको रिमूव करेगा. इट इज़ गोइंग टू रिमूव एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस, जो भी आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है उन सबको रिमूव करेगा. इट इज़ गोइंग टू रिमूव द न्यू लाइन कैरेक्टर. इट इज़ गोइंग टू रिमूव योर कमेंट्स, ये सभी कमेंट्स को रिमूव करेगा. बेसिकली इट इज़ गोइंग टू रिमूव द प्रोग्राम जो कि यूज़र ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किए हैं. मेरे कहने का मतलब क्या, व्हाट डू आई रियली मीन टू से बाय दिस? देखो, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम को इंडेंट करते हैं, इंडेंटेशन हम लोग देते हैं ताकि जो प्रोग्राम का रीडर है उसको समझ में आए कि हम लोग प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में, राइट? जैसे हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, राइट? जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपका एक हेडर फाइल है, राइट? अब यहाँ पर हेडर फाइल के बाद वाई डू वी गिव अ एक्स्ट्रा न्यू लाइन? हम नई लाइन को क्यों देते हैं? देयर इज नो यूज़ ऑफ गिविंग अ न्यू लाइन. इसका कोई बेनिफिट नहीं है. इवन विदाउट गिविंग अ न्यू लाइन यू कैन राइट इट, बट हम लोग एक न्यू लाइन क्यों दिया हमने? ताकि हम लोग समझ पाए कि हमने प्रोग्राम में क्या किया है. उसी तरीके जैसे मेन फंक्शन है, इन दिस मेन फंक्शन आई कैन गिव अ कमेंट, आई कैन गिव अ सिंगल लाइन कमेंट, आई कैन गिव अ मल्टी लाइन कमेंट. तो यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकता हूँ. आई कैन गिव अ इंडेंटेशन, जैसे आई कैन से इंटीजर ए, राइट? आफ्टर सम इंडेंटेशन आई कैन राइट अ फोर लूप एंड सो ऑन. तो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट वी राइट फॉर द यूज़र अंडरस्टैंडिंग. तो मतलब यूज़र के समझने के लिए हम इन चीज़ों को लिखते हैं. बट थिंग इज, these things are just for human understanding, these things are not for your computer system. ये सभी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ जस्ट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले हम प्रोग्राम को देते हैं प्री प्रोसेसर के पास. द यूज़ ऑफ प्री प्रोसेसर इज़ टू रिमूव ऑल ऑफ दिस अननेसेसरी कमेंट्स, बिकॉज कंप्यूटर्स को ये सभी कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. इज़ टू रिजॉल्व ऑल ऑफ दिस हैश डिफाइंड स्टेटमेंट. जहाँ पर भी n को हमने यूज़ किया है, ऑल ऑफ दिस n विल बी रिप्लेस्ड बाई 5. प्री प्रोसेसर विल रिमूव ऑल द न्यू लाइन, मतलब जो भी यहाँ पर लाइन चेंज हो रहा है, लाइन चेंज को हम बोलते हैं न्यू लाइन. तो जो भी लाइन चेंजेस हो रहे हैं हम इन लाइन चेंजेस को हटा देंगे. इट इज़ गोइंग टू रिमूव ऑल द अननेसेसरी स्पेसेस. वो सभी चीज़ों को प्री प्रोसेसर रिमूव करेगा. अब प्री प्रोसेसर के बाद जो हमें प्रोग्राम मिलेगा, दैट एंटायर प्रोग्राम विल बी अ वन सिंगल लाइन प्रोग्राम. वो आपका वन सिंगल लाइन प्रोग्राम है. ओके, दैट इज़ अ वन सिंगल लाइन प्रोग्राम. अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? ठीक है.
अब बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ कंपटीशन, तो टीओसी सब्जेक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज का। टीओसी में एक कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज का। लैंग्वेज मीन्स वी कैन डिफाइन अ लैंग्वेज दैट इज़ अ यूज़र डिफाइंड लैंग्वेज, जो यूज़र जो है एक मैथमेटिकली प्रिसाइज लैंग्वेज को क्रिएट कर सकता है, करेक्ट। अब उन सभी लैंग्वेजेस में वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है, यू हैव अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यू हैव अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड यू हैव अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, राइट। तो हमारे पास अलग अलग लेवल्स की लैंग्वेज थी, करेक्ट। एंड टू जनरेट अ लैंग्वेज वी यूज़ समथिंग कॉल्ड एज ए ग्रामर। एक लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्रामर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ऐसे कितने से लोग हैं जो कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ चुके हैं अब तक? आई मीन दिस थ्योरी ऑफ कंपटीशन यू हैव स्टडीड, थ्योरी ऑफ कंपटीशन कंपाइलर डिज़ाइन अपने स्कूल कॉलेज लेवल पे, नॉट नेसेसरली कि क्लासेस में अटेंड किया हो, लेकिन आपने अपने कॉलेज लेवल में हाउ मेनी इफ यू हैव स्टडीड थ्योरी ऑफ कंपटीशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन इन योर कॉलेज लेवल? गुड। तो आप कुछ मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस सब्जेक्ट। आप में से काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने नहीं पढ़ा। नो प्रॉब्लम, नहीं भी पढ़ा, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, तो जो ग्रामर है वो हेल्प करता है हमें इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए, ठीक है। मतलब जो ग्रामर से हम लोग इस लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं, राइट। जैसे हमारे पास ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं दे आर मोस्टली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, इवन दो सम प्लेसेस अगर आप चेक करेंगे, सो योर सी लैंग्वेज इज़ रिटन एज ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को काफ़ी जगह पर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी लिखा गया है, बट यू कैन सी कि ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ दोज लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, ओके। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। अब जो भी आपका प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिला है, वट एवर प्रोग्राम यू हैव रिसीव्ड आफ्टर दिस प्री प्रोसेसर, दैट प्रोग्राम विल बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन द लैंग्वेज। जो प्रोग्राम हमने पढ़ा है, राइट। सो इन थ्योरी ऑफ कंपटीशन यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लैंग्वेज। आपने लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, और विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल वेरियस स्ट्रिंग्स कैन क्रिएट अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पर हो सकती है, करेक्ट। सो हियर इन दिस केस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, जो आपका पूरा प्रोग्राम है, दिस एंटायर प्रोग्राम इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर, इस ग्रामर की हेल्प से ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस स्ट्रिंग को, क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है, क्या मतलब कहने का मतलब है क्या ये स्ट्रिंग एक वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है, राइट। सो दैट एवरीथिंग वी डू इन दिस कंपाइलर डिज़ाइन, इन दिस कंपाइलेशन फेज। तो ये जो कंपाइलेशन है, जो कंपाइलर वाला फेज़ है, इस पूरे फेज़ में हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है क्या वो एक वैलिड स्ट्रिंग है या फिर नहीं है। अगर वो एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि एक वैलिड प्रोग्राम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एक कंपाइल टाइम एरर को थ्रो करेंगे। अगर वो एक वैलिड प्रोग्राम है तो हम उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेंगे, ओके। विल डिस्कस इट, फाइन। उसके बाद हमारे पास आता है असेंबलर, राइट। असेंबलर, लिंकर, लोडर। तो ये जो सभी फेजेस हैं, दीज फेजेस आर डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फेजेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला फेज़ आता है आपके पास प्रोग्रामिंग का, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग आप करते हैं, एंड दिस इज़ द फेज़ दैट कम्स इन द कंपाइलर। ये कंपाइलर वाला फेज़ है। और जो सबसे एंड में आपका फेज़ आता है, दिस इज़ मेमोरी, विच इज़ कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो अगेन यू कैन सी एक पूरी प्रोग्राम की कंपाइलेशन में आपके पास तीनों कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं। पहला कंपोनेंट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ये पूरा आपके पास एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। दिस कंप्लीट इज़ योर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, करेक्ट। सेकेंड कंपोनेंट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड कंपोनेंट इज़ योर हार्डवेयर विच इज़ योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो एक प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लिखने से लेकर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने तक, उस प्रोग्राम का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने तक, ये तीनों जो कंपोनेंट हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होकर मिलकर काम करते हैं, ओके। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इस कंपाइलेशन फेज़ की बात करता हूँ कि अगर मैं एक कंपाइलेशन फेज़, कंपाइलर क्या है, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ये प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, राइट। दिस इज़ योर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, राइट, तो एज आई सेड कि ये आपका जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, इस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में क्या क्या फेजेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला फेज़ होता है यहाँ पर, वो है लेक्सिकल एनालाइज़र, ठीक है।
तो अब ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता हूँ, लेट मी गिव अ ब्रीफ आइडिया। ऑब्वियसली अभी मैंने कंपाइलर डिज़ाइन आपको नहीं पढ़ाया है, बट अगेन आई थिंक सम ऑफ यू मस्ट बी हैविंग अ ब्रीफ आइडिया। जैसे एज आई सेड कि आपका प्री प्रोसेसर के बाद आपको एक प्रोग्राम मिला विच इज़ रिटन इन वन लाइन। लेट अस अज्यूम जो आपको प्रोग्राम मिला है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, मेन फंक्शन, you have integer a comma b comma c, right? Then you have a is equal to 5, b is equal to 6, and then you have c is equal to a plus b like this, right? तो ये आपका एक सिंगल लाइन में प्रोग्राम है. This is the program in one single line, right? So this program will be given to this lexical analyzer. अब लेक्सिकल एनालाइज़र का काम क्या है कि इस पूरे प्रोग्राम में जो टोकन्स है, टोकन्स का कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एक यूनिट है, जो हर एक चीज़ एक यूनिट है, उसको आइडेंटिफाई करे. जैसे कहने का मतलब है कि मेन जो है ये पूरा नाम जो है इट इज़ अ टोकन, राइट? दिस ओपनिंग ब्रैकेट एंड दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, दीज आर टू टोकन्स. दिस ओपनिंग ब्रैकेट इट इज़ अ टोकन, इंटीजर इज़ अ टोकन, ए इज़ अ टोकन, कॉमा इज़ अ टोकन, बी इज़ अ टोकन. तो यहाँ पर हम लोग सभी टोकन्स को आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, अब टोकन्स का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टोकन्स? इन टोकन्स का मतलब क्या है? देखो, अगर आपने कोई भी थ्योरी ऑफ कंपटीशन में अगर आपने किसी ग्रामर को स्टडी किया हो, अगर सम ऑफ यू हैव स्टडीड इट, इफ़ यू रिमेंबर इट, तो हमने थ्योरी ऑफ कंपटीशन में ग्रामर में हमने कुछ ऐसा स्टडी किया था कि हमारे पास ऐसा कुछ है, एस ड्राइव्स ए बी, वेयर ए कैन क्रिएट स्मॉल ए स्लैश ए एंड बी कैन क्रिएट स्मॉल बी स्लैश बी. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ए और बी है, दी स्मॉल ए एंड बी, दीज आर योर टर्मिनल्स, वो यहाँ पर टर्मिनल्स हैं. एंड दिस कैपिटल ए, B and S, these are your variables. ठीक है, अब ये जो पूरी स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी है, इस पूरी स्ट्रिंग में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टर्मिनल्स. ये पूरी जो स्ट्रिंग है वो आपकी टर्मिनल की स्ट्रिंग है. पूरी जो स्ट्रिंग है ये आपकी टर्मिनल की है. जो पूरा प्रोग्राम आप लिखते हैं दैट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ अ मेड ऑफ टर्मिनल्स. ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे टर्मिनल्स होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए. जैसे कोई वैलिड स्टेटमेंट है, जैसे इक्वल टू साइन आपके पास है, प्लस साइन है, जैसे प्लस इक्वल टू साइन है, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से हैं. कुछ ऐसे टर्मिनल्स हैं जो कि हमने वेरिएबल के नाम क्रिएट किए हैं, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स. इसको हम लोग आइडेंटिफायर्स के नाम से बोलते हैं. ओके, बट व्हेन यू गिव दिस प्रोग्राम, आई मीन इफ़ यू गिव दिस ऑल ऑफ दिस टर्मिनल्स एंड टोकन्स टू दिस सिंटैक्स एनालाइजर. अब सिंटैक्स एनालाइजर का काम क्या है कि जो इस तरह की ग्रामर है, इट शुड टेक अ ग्रामर लाइक दिस. जो भी सी लैंग्वेज की ग्रामर होगी, सी लैंग्वेज की ग्रामर को लेगा एंड इट विल ट्राई टू जनरेट दिस एंटायर स्ट्रिंग. तो बेसिकली उस ग्रामर को लेके पूरे प्रोग्राम को जनरेट करने की कोशिश करेगा. इफ़ दिस कैन जनरेट द एंटायर प्रोग्राम, दैट मीन्स द प्रोग्राम इज़ अ वैलिड प्रोग्राम. प्रोग्राम एक वैलिड प्रोग्राम है. लेकिन अगर वो इस प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकता तो यानी कि जो प्रोग्राम है वो एक इनवैलिड प्रोग्राम है. ओके, तो जो सिंटैक्स एनालाइजर फेज़ है उसमें हम पूरे प्रोग्राम को जनरेट करने की कोशिश करते हैं. बट समहाउ अगर आप इस प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वैलिड प्रोग्राम. मतलब इस ग्रामर के थ्रू अगर आप इस प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वैलिड प्रोग्राम. इसका मतलब है कि जो आपका प्रोग्राम है इसके अंदर कुछ कंपाइलेशन एरर है. सो देयर सम कंपाइल टाइम एरर, राइट? कंपाइल टाइम एरर, राइट? यानी कि ऐसे एरर जो कंपाइलेशन प्रोसेस में आते हैं, ड्यूरिंग कंपाइलेशन आते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर. और ऐसे एरर जो कि प्रोग्राम को जब रन कर रहे हैं उस समय पर आते हैं तो उसको हम बोलेंगे रन टाइम एरर. जैसे कि यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की सिंटैक्स एनालाइजर फेज़ के अंदर कि ये प्रोग्राम आपका वैलिड प्रोग्राम है या नहीं है, तो वो हो गया आपके पास कंपाइल टाइम एरर्स. ठीक है, देन यू हैव सिमेंटिक एनालाइजर. तो सिमेंटिकली हम देखेंगे क्या जो प्रोग्राम है वो सिमेंटिकली ठीक है या नहीं है. सिमेंटिकली ठीक होने का मतलब क्या है? जैसे अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कैरेक्टर ए लिखे हमने, कैरेक्टर ए, राइट? वी हैव इंटीजर बी एंड यू हैव फ्लोट सी. ठीक है, ये आपका कुछ प्रोग्राम है, कैरेक्टर ए, इंटीजर बी एंड फ्लोट सी. कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? यू विल आइडेंटिफाई नो, वी कैन नॉट डू इट. वाई? बिकॉज इंटीजर एंड फ्लोट इज़ अ बिगर डेटा टाइप एज कम्पेयर टू कैरेक्टर. अगर आप इंटीजर और फ्लोट का डेटा कैरेक्टर के अंदर स्टोर करेंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी लॉस ऑफ डेटा, राइट? सो इट इज़ नॉट करेक्ट. यहाँ पर हम लोग वी कैन प्रोड्यूस अ वार्निंग दैट इट इज़ नॉट अ वैलिड ऑपरेशन. ये एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है बिकॉज यू विल लूज अ डेटा. बट एट द सेम टाइम देर आर सम प्लेसेस जहाँ पर इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए. आई मीन वी शुड नॉट बी एबल टू स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट इन अ कैरेक्टर. ठीक है, तो वो एक तरह से आप कह सकते हो दैट कैन से इट इज़ अ सिमेंटिक एरर कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैलिड होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैलिड नहीं होनी चाहिए. यू कैन नॉट स्टोर अ फ्लोट इन अ कैरेक्टर. तो ये जो चीज़ें हैं एक सिमेंटिक चीज़ है और इसको हम सिमेंटिक एनालाइजर फेज में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. ओके,
आफ्टर दिस वी गो टू इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, और यहाँ पर हम प्रोग्राम को 3 एड्रेस कोड में जनरेट करते हैं, 3 एड्रेस कोड. सो अगेन इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, दिस एंटायर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन. उसके बाद हम लोग देते हैं यहाँ पर कोड ऑप्टिमाइज़र के पास, जो कि 3 एड्रेस कोड को कन्वर्ट करता है, हमने ऑप्टिमाइज़ करता है, और लास्ट में आपके पास जो कोड जनरेटर है ये आपका असेंबली कोड जनरेट करता है. दिस इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आके आपका असेंबली कोड जनरेट होता है. तो एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्रोग्राम, राइट. आई थिंक दिस मस्ट नॉट बी विजिबल, ये आप सभी के साथ विजिबल नहीं होगा. सो आई हैव ऑल्सो रिटर्न दिस इन अ जूम्ड फॉर्मेट. जैसे आपकी एक प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी. ये आपकी एक स्टेटमेंट है प्रोग्राम के अंदर. ओके, राइट. दिस इज रिटर्न इन सी लैंग्वेज. सो व्हेन यू गिव दिस स्टेटमेंट टू अ लेक्सिकल एनालाइजर, अब लेक्सिकल एनालाइजर सबसे पहले इसमें टोकन्स को आइडेंटिफाई करेगा. जैसे यहाँ पर x इज़ अ टोकन, इक्वल टू इज़ अ टोकन, a इज़ अ टोकन, b इज़ अ टोकन, करेक्ट. तो ये सभी टोकन्स को आइडेंटिफाई करेगा. लेकिन इसमें कुछ ऐसे टोकन है जो कि वेरिएबल के नाम है, और वो नाम आपने दिए हैं, वो नाम लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो नाम आपने दिए, करेक्ट. तो क्या करेगा कि जो भी आपके पास यहाँ पर नेम्स है, आइडेंटिफायर्स है, उसको ये एक आईडी देगा. इट विल गिव एन आईडी टू एवरी आइडेंटिफायर, ठीक है. और जो आपके पास जैसे प्लस सिंबल है, दे विल बी यूज्ड एज इट इज़. तो ये हमारे पास प्रोग्राम बना. एंड देन वी गिव दिस प्रोग्राम टू सिंटैक्स एनालाइजर. सिंटैक्स एनालाइजर ग्रामर को इनपुट लेगा एंड इट विल ट्राई टू क्रिएट अ पार्स ट्री. ये एक पार्स ट्री को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है. सो पार्स ट्री का मतलब है कि क्या हम इस ग्रामर से इस कंप्लीट स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है. एंड फ्रॉम देयर वी गिव इट टू सिमेंटिक एनालाइजर, जो चेक करेगा प्रोग्राम सिमेंटिकली ठीक है कि नहीं है. मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपने एक कैरेक्टर को ले लिया और कैरेक्टर के अंदर आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे. अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं सो दैट इज़ नॉट सिमेंटिकली करेक्ट. तो सिमेंटिक एनालाइजर जो है वो सिमेंटिकली चेक करेगा कि उसके अंदर कोई सिमेंटिक मिस्टेक्स है या फिर नहीं है. ओके, देन हमारे पास आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जो कि इस पार्स ट्री को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेगा. और इसको हम जो कोड ऑप्टिमाइज़र फेज़ है वो एक ऑप्शनल फेज़ है. मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटरमीडिएट कोड के बाद हमेशा कोड ऑप्टिमाइजेशन हो. ऑप्टिमाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल फेज़, ठीक है. उसके बाद आता है आपके पास टारगेट कोड जनरेटर, जहाँ पर आपके पास ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस आती हैं. यानी कि बेसिकली आपका जो कंपाइलर का मेन पर्पज़ है, वो मेन पर्पज़ ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को हम टारगेट कोड में कैसे जनरेट करें, यानी कि उसको असेंबली कोड में कैसे जनरेट करें. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये समझने की यहाँ पर ज़रूरत है. ओके, जिसको समझ में नहीं आया, जिसने कंपाइलर डिज़ाइन नहीं स्टडी किया, डोंट वरी. बट यहाँ से सिर्फ इतना गेन करो कि हमारे पास जो कंपाइलर है, कंपाइलर एक राहुल गांधी का टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट बहुत चला था कि नरेंद्र मोदी के पास एक मशीन है जिसके अंदर आलू दो और सोना निकलेगा, आलू दो और सोना निकलेगा, राइट. आपने शायद सुना होगा. दिस वाज वेरी फेमस इन द न्यूज़, करेक्ट. तो उसी तरीके से कंपाइलर के अंदर अगर आप एक प्रोग्राम देंगे इन हाई लेवल लैंग्वेज, तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा असेंबली कोड. तो एक असेंबली कोड की तरह यहाँ से लास्ट में असेंबली कोड निकलेगा. इतना समझ आया? इज़ इट क्लियर? इतना क्लियर है सभी के साथ? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए चैट विंडो के अंदर, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंधी आ रही है, और हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कैसे? गुड, वेरी गुड, सुपर डुपर स्मार्ट. आप सभी बहुत स्मार्ट हैं. येस, इट्स रेनिंग हेविली आउटसाइड, बट बहुत अच्छा मौसम है, ठीक है. अब दिस इज़, यू कैन सी इन दिस प्रेजेंटेशन, यू कैन सी कि हमारे पास असेंबली कोड कुछ दिखता कैसा है. सो दिस इज़ सम एग्जांपल ऑफ असेंबली कोड. तो इस असेंबली कोड को हम बाद में चेक करेंगे कि कैसे जनरेट किया जा सकता है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस असेंबली कोड, हाउ कैन वी जनरेट इट. yes, that was good, Shubham. If you understood, that's good. So Anjali, we are going to take 2 or 3 sessions. तो हम 1.5 hour के तीन सेशन लेंगे. तो 3 सेशन में आई थिंक सो 3 to 4 सेशन में कवर हो जाना चाहिए. सो 1.5 hour, अगेन 1.5 hour, अगेन 1.5 hour. तो आज मेरा एम है कि मैं 2 सेशंस को कवर कर सकूँ 1.5 hour के. एंड नेक्स्ट टुमारो ऑल्सो आई वॉन्ट टू कवर 2 सेशंस ऑफ 1.5 hour. ठीक है, फाइन.
अब देखो ये दिखा रहा है हमारे पास कुछ असेंबली कोड, असेंबली इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो असेंबली इंस्ट्रक्शंस में हम लोग इसको बाद में स्टडी करेंगे कैसे जनरेट करते हैं, हाउ कैन वी जनरेट। जनरेटिंग दिस असेंबली कोड इज़ ऑल्सो वेरी इजी, बहुत आसान है इसको जनरेट करना। अभी बस समझो कि कैसी असेंबली कोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या नाम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारे पास असेंबली कोड है लोड ए मेमोरी, यानी कि मेमोरी से डेटा को रजिस्टर ए के अंदर लोड कर दो, राइट। उसी तरीके से लोड बी मेमोरी, ओके, यानी कि जो भी मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उसका जो डेटा है वो रजिस्टर बी के अंदर लोड कर दीजिए, ओके। उसी तरीके से हमारे पास है कॉन बी कॉन, यानी कि लोड ए कॉन्स्टेंट वैल्यू इंटर रजिस्टर बी। मतलब कहने का मतलब है कि हम जब यहाँ पर कॉन बी का मतलब है, इसका मतलब है कॉन बी कॉमा 5, यानी कि 5 वैल्यू को रजिस्टर बी के अंदर लोड कर दीजिए, ओके। उसी तरीके से यू हैव ऐड इंस्ट्रक्शन लाइक ऐड ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट टू सी। तो ए और बी को ऐड करो, उसका रिजल्ट सी के पास स्टोर करो। उसी तरीके से मल इंस्ट्रक्शन हो सकती है। यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो राइट नाउ डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन टू दिस, ये इस पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो जस्ट फॉर योर प्रेफरेंस पर्पज आई हैव गिवन दिस प्रोग्राम, क्योंकि इस असेंबली कोड को यूज़ करके आई हैव रिटर्न दिस फैक्टोरियल फंक्शन। सो इफ़ यू रिमेंबर इट, तो वी कैन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम है, राइट। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर को आप एक रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट अ नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये चेक करेंगे, इफ़ यू चेक इट, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये एक नंबर का फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एंड दिस प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मे बी इट इज रिटन इन सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज एक प्रोग्राम है जिसको हमने यहाँ पर एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है। आई होप प्रोग्राम आप सभी के साथ विजिबल होगा। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? राइट, अगर ये प्रोग्राम विजिबल है देन यू कैन सी जो आपका सी कंपाइलर है, सी कंपाइलर ट्रांसलेट्स दिस प्रोग्राम इनटू दिस काइंड ऑफ असेंबली कोड। तो जो आपका सी कंपाइलर है वो इस प्रोग्राम को इस तरह के असेंबली कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है, एंड इन दिस असेंबली कोड वी हैव यूज्ड ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस। यही वाली इंस्ट्रक्शन जो है हमने इस असेंबली कोड में यूज़ की है, ओके। सो बेसिकली जो भी आपका असेंबली कोड होगा, वट एवर असेंबली कोड यू हैव, सो दैट असेंबली कोड विल बी डिपेंडेंट ऑन योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इफ़ यू कम बैक हियर, अगर आपको याद हो तो आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है आपका वो है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। जैसे ये जो दोनों कंपोनेंट है ये आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, करेक्ट। और ये जो असेंबली कोड है, जो असेंबली कोड आपको मिला है, दिस असेंबली कोड विल बी डिपेंडेंट ऑन योर हार्डवेयर, या आपके हार्डवेयर के अंदर डिपेंडेंट होगा। जैसे कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, एक सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसेसर कैन सपोर्ट अ इंस्ट्रक्शन। ऐसा हो सकता है कुछ दूसरा ऐसा प्रोसेसर है जो कि इस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं करता, तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर आपका असेंबली कोड डिपेंडेंट होता है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी प्रोग्राम को हमने इस असेंबली कोड में कन्वर्ट किया, ओके। लेटर हम इसको बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे जब आप कंपाइलर डिज़ाइन स्टडी करेंगे, राइट। कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर मेरे साथ अगर आप कंपाइलर डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डेप्थ में बताऊँगा कि एक प्रोग्राम को लिखने से लेकर उसको असेंबली कोड तक, इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने तक पूरी प्रोसेस क्या होती है और किसी प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो इसका जो गैप है, ये जो पूरा गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है, इस पूरे गैप को, ये जो पूरा गैप है, इस गैप को हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आपका एक ब्रीफ आइडिया मैंने दिया सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का। जो आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, आई हैव गिवन यू ब्रीफ आइडिया। नाउ सेकंड इज द आइडिया ऑफ योर हार्डवेयर। आपका जो हार्डवेयर है उसका एक आइडिया हम लोग यहाँ पर देंगे, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। चलो एनीवेज बिफोर आई गिव यू ब्रीफ आइडिया, अब तक समझ आया? अब तक ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आई हो? इज़ देयर एनीथिंग दैट यू फाइंड डिफिकल्ट सो फार? अब तक ठीक था, मतलब आप बोर नहीं हुए ना अब तक? बस मुझे इतना बताइए सर हम लोग बोर नहीं हुए, बिकॉज इस लेक्चर का बेनिफिट तभी है जब आप बोर ना हो। क्या कोई बोर हो रहा है यहाँ पर?
देखो मैं बहुत इन डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि मैं आई कैन गो इन लॉट ऑफ डेप्थ। हर एक जो पेज है यहाँ पर इस स्लाइड का, एवरी पेज है, जैसे ये एक पेज है स्लाइड का, तो ये पेज ना एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जितने भी फेजेस हैं यहाँ पर कंपाइलर के, तो ये जो सभी जो फेजेस हैं, ये सभी फेजेस एक चैप्टर है आपके कंपाइलर डिज़ाइन में। तो मैं यहाँ पर कंपाइलर डिज़ाइन पूरे सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहा, आई एम नॉट डिस्कसिंग द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन, क्योंकि कंपाइलर डिज़ाइन के पूरे सब्जेक्ट के अंदर ये सभी चीज़ें हम लोग एक चैप्टर की तरह स्टडी करेंगे। सो राइट नाउ इट माइट नॉट बी सो ईजी, मतलब इट माइट लुक वेरी ईजी, बट लेटर ऑन हम इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। So now I have to start the next component, which is your digital logic component.